कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव डालने पर उन्होंने जोर दिया, लेकिन एकता इस ऑल पार्टी मीटिंग में दिखी नहीं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने इस बैठक का बायकॉट किया और अब बड़ा सवाल यह है कि पंजाब में किसानों के मुद्दे पर राजनीति लगातार रफ्तार पकड़ रही है। क्या यह सर्वदलीय बैठक सार्थक साबित हुई है? क्या पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों में किसान हितैषी बनने की होड़ लगी है? आज की सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से किसान हित में सभी दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की अपील की गई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की एकता से केंद्र पर दबाव बनाया जा सकेगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा कि कैप्टन साहब दिल्ली में खुद पंजाब के आंदोलन का नेतृत्व क्यों नहीं करते। भगवंत मान ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक करनी चाहिए। तो वहीं श्रोमणी अकाली दल ने गणतंत्र दिवस पर हुई घटना की पूरी जांच कराए जाने की मांग की है। बीजेपी ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫालतू ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਅਜੀ ਸਾਰੇ MP MLA ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਇੱਛਾ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਦਤ ਜੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਠ ਗਏ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘੀਏ ਢਾਂਚੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ CBI ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਔਨ ਦੇਅਰ ਪਾਰਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ BJP ਵਾਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਫੜੋ ਫੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਪੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਧਰੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ UAPA ਆ ਤੇ ਜਾਂ NIA ਆ, ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 88 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰਤੇ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੈਂਪ ਲਾਓ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਅਦਾ? ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ, 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣੋ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਮਾਇਲੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ स्टेटमेंट ਦਿੱਤੀ ਸੀ कोरोना ਦੀ आड़ ਲੈ। तो आपने अलग अलग पार्टियों के बयान सुन लिए। राजनीतिक तौर पर इस बैठक के बाद उन लोगों की ओर से क्या कुछ कहा गया है अपनी अपनी पार्टी की तरफ से, लेकिन कई सारे सवाल भी हैं इस मुद्दे को लेकर। एक नजर इन सवालों पर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या कुछ ये बड़े सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या किसानों के मुद्दे पर पंजाब में जो बैठक हुई है विपक्षी पार्टियों की, ये सार्थक साबित हुई है? सवाल नंबर 2, क्या विपक्षी दल दलगत राजनीति से उठकर इस पूरे मामले को देखेंगे? क्या पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किसान एक बड़ा मुद्दा होगा? क्या किसानों के मुद्दे पर पंजाब में जो बैठक हुई है वो सार्थक साबित हुई है विपक्षी पार्टियों की? ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में क्या किसान बड़ा मुद्दा रहने वाला है? ये भी अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल है। इसलिए लगातार जो विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी सियासी तौर पर कर रही हैं। बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरने में जुटी हुई है शुरुआत से इस मुद्दे को लेकर। मेरे साथ मेरे संवाददाता मोहाली से अरुण आहूजा जुड़ गए हैं अधिक बातचीत के साथ। अरुण, आज जो बैठक हुई है विपक्षी पार्टियों की, क्या कुछ इस बैठक के बाद नतीजा निकला है? अरुण बताइए। प्रयाग मुख मंत्री ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਦਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2020 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਵਦਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤਹਈਆ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਕਿਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਅਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯੁਆਪਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੱਕ BJP ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਤੇ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਟਕਰਾਏ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ BJP ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ IPC ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਬਕਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 0 FIR ਸੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਰੁਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 254, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਰਟੀਕਲ 254 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਧ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। अगर उस तरीक के तहत राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मिलने समा नहीं देंगे, गृह मंत्री मिलने समा नहीं देंगे, तो असीं दिल्ली च उन्होंने घर के बाहर जाके उन्होंने कोठी के बाहर जो धरना देवांगे। तो किधर ना किते वो जाए जो नहीं मन्निया गया। ये जरूर किया गया कि असीं पत्र लिखांगे, मंग जी की जाएगी प्रधानमंत्री को समा लैन दी, राष्ट्रपति को समा मंगया जाएगा। तो सारे सियासी दलों के जो लीडर ने वो दिल्ली में जाणगे तो इन तिना खेतीबाड़ी कानूनों रद्द करने नूं लैके केंद्र ते प्रधानमंत्री ते दबाव जिहड़ा है वो बनाया जाएगा। एक होर वड्डी गल जिहड़ी मंग की गई है कि अप्रैल दे विच जिहड़ी है कणक जिहड़ी वो खेतों तो बाहर मंडियां च आएगी। तो सरकार ने भी मंग की है कि जिहड़ी आने वाली फसल है वो असीं पुराने जिहड़ा सिस्टम हैगा मंडी सिस्टम उहदे तहत खरीद करांगे। तो चाहे FCI हो चाहे स्टेट एजेंसियां उन्हां ते रोक ना लगाई जाए। जो CCL की गल हुंदी है जारी की जाती तो वो भी जिहड़ी लिमिट है वो समय सिर पंजाब नूं मिले ताकि जो सरकारी खरीद एजेंसियां। जी चलिए अरुण, आपका बहुत शुक्रिया बातचीत वहां पर लोगों से करने के लिए। अरुण हमारे साथ जुड़े संवाददाता उनसे, क्योंकि वहां पर वो मौजूद रहे थे और ग्राउंड पर लोगों की राय क्या कुछ कहती हैं विपक्षी एकता को लेकर या फिर किसानों के आंदोलन को लेकर, जिस तरीके से जो मुहिम विपक्ष चला रहा है एक साथ जुटकर और केंद्र सरकार के विरोध में, किसानों के समर्थन में, इस पर आम लोगों की राय भी आपने सुनी है। किसानों के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। पंजाब कांग्रेस से सांसदों ने केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की और नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर पर प्रदर्शन किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर सांसदों ने विरोध जताया है। और चलिए अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से हैं गुरविंदर ढिल्लों। गुरविंदर जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही शिरोमणि अकाली दल से हमारे साथ हैं राजेंद्र दीपा। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल से ही मैं कॉमेंट चाहूंगा इस मुद्दे पर। राजेंद्र जी, विपक्ष की जो बैठक हुई है क्या ये सार्थक हुई है और क्या इसके समर्थन में आप हैं? राजेंद्र जी। नहीं, हम बिल्कुल समर्थन में हैं। बहुत जरूरी थी ये बैठक बुलानी, चीफ मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया, सभी दलों को, जो भी राजनीतिक दल पंजाब से हैं उनको इकट्ठा किया, तब देखा कि किसान के जो मौजूदा हालात क्या हैं, जो ये संघर्ष पिछले 4 महीनों से चल रहा है कहाँ खड़ा है, क्या इसमें आगे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें सभी दलों ने हिस्सा लिया। एकजुटता तक काफी हद तक एकजुटता का सबूत भी दिया। बेहतर होता, अच्छा होता, आम आदमी पार्टी उन्होंने अपनी बात जरूर रखी चाहिए, लेकिन यदि वो वॉकआउट ना करते तो और भी अच्छा होता। जो भी अपनी बात प्रेस में कर सकते कि हमने ये सुजेशन दी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने इनको माना नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल फिर वो जो एकता का सबूत मिलता, लेकिन अभी भी जो मोर और एकता ही दिखाई है सभी दलों ने, जो कि एक अच्छा मैसेज जाता है खास करके बीजेपी की जो सेंटर की सरकार है उसको, कि पंजाब जो किसानों का संघर्ष चल रहा है, किसानों के मुद्दे हैं, उसमें बिल्कुल एकजुट है और सारा पंजाब ये चाहता है कि ये तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए। जो बीजेपी की गुंडागर्दी है उसको हम कंडेम करते हैं। जो हमारे नौजवान लापता है उसके लिए दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो अरेस्ट किए गए हैं उनका जल्दी, उनका जो भी कैंसिलेशन डालनी चाहिए। जो लीडर्स के इन्होंने अरेस्ट किया उनको छोड़ना चाहिए और जो झूठे केस बनाए हैं उनको भी वापस देना चाहिए। इन दोनों बिल्कुल इकट्ठे हुए और ये भी उनकी बनी है कि प्राइम मिनिस्टर को भी हम जल्दी मिलेंगे। बेहतर होता कि आम आदमी पार्टी के साथ रहे। ठीक है राजेंद्र जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं गुरविंदर जी का रुख करूंगा। गुरविंदर जी, क्या सहमत हैं राजेंद्र जी की बातों से? क्योंकि भगवंत मान को जब हमने सुना तो उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो साथ में हैं विपक्षी एकता के। गुरविंदर जी। पराग जी, विपक्षी
विपक्षी एकता के हम खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि विपक्षी एकता बनी रहे और किसानों के हक में, किसानों के आंदोलन के लिए सबसे अच्छा कदम उठाया जाए। लेकिन जो सरकार का कदम है आज का, हम ये पूछना चाहते हैं नंबर एक पराग जी कि जब पहले सर्व पार्टी मीटिंग की हुई थी, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, उसका क्या नतीजा निकला? क्या उस पर मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया? उन पर जो उन्होंने वादे किए थे उन पर मुख्यमंत्री जी ने कोई काम किया? ये दीपा जी ने बोला है कि आम आदमी पार्टी भी आती, लेकिन दीपा जी ने ये उनको नहीं पूछा कि जो पिछली मीटिंग हुई थी उनका सरकार ने क्या किया। जो पहले अगस्त में एक सेशन बुलाया था उसमें इन कानूनों को रद्द किया था, रद्द करने के लिए अमेंडमेंट जो उस टाइम अगस्त में, अभी ये ऑर्डिनेंस थे तीनों कानून, और पंजाब की सरकार ने विधानसभा का विशेष जो इजलास बुलाकर उनको रद्द करने के लिए वो पूरा लेटर जो है वो भेजा जाना था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने के जगह पर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में ही वो लेटर पड़ा रहा और आगे गया नहीं। ये दीपा जी के भी ध्यान में है सभी चीजें। और उसके बाद फिर विशेष अधिवेशन बुलाया गया, अमेंडमेंट की गई और अमेंडमेंट करके गवर्नर को भेजी जा रही है। ये क्यों नहीं पंजाब की सरकार प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर से बात करती? मुख्यमंत्री दिल्ली में जाते हैं, होम मिनिस्टर में मिलते हैं, पता नहीं क्या उनसे अंदर खाते बातें करके वापस आ जाते हैं और बाहर आके बोलते हैं कि किसान आंदोलन के बारे में मैंने कोई बात नहीं की। तो वहां गए क्या कर रहे थे? आंदोलन के दौरान अब सेंट्रल गवर्नमेंट के नेताओं को मिल रहे हैं लेकिन किसानों के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये कैसे इन पर भरोसा किया जा सके? कैसे कांग्रेस पर यकीन किया जा सके? इसीलिए आज इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस हमारी जो मांगे रखी गई वो मुख्यमंत्री ने ठुकरा दी और ठुकरा हमने बाइकआउट कर दिया। जब ये सरकार ने किसानों के लिए कुछ करा ही नहीं है तो फिर हम इनकी मीटिंगों को, इनको बैठकों को क्यों हम अटेंड करें और क्यों हम किसानों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी करें? दूसरी बात रही, दिल्ली में 26 जनवरी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री का फर्ज बनता था कि तुरंत वो दिल्ली जाते, और जो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, पुलिस के द्वारा किसानों पर प्रेशर डाल रही है, केस दर्ज कर रही है, और दिल्ली पुलिस पंजाब में आकर छापेमारी करके पंजाब के नौजवानों को अरेस्ट करके दिल्ली लेकर जा रही है, उसके लिए बिल्कुल ही मुख्यमंत्री पंजाब ने कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं, पंजाब सरकार ने रोका ही नहीं। तो कैसे हम इनकी बैठकों पर विश्वास कर ले? दूसरी बात रही, ये बोलते हैं जो एक डिबेट में मैंने कल बैठे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अगर होम मिनिस्टर कहे तब हमारी पुलिस वहां जाकर लग सकती है रक्षा के लिए। जो किसानों के ऊपर बीजेपी के गुंडे जहां वहां के भाड़े पर लिए हुए लोग जो है वो पत्थरबाजी करते हैं, हमला करते हैं, लेकिन हमें ये बताया जाए पराग जी, एमएस बेटा पंजाब के लीडर हैं, उनको दिल्ली में सुरक्षा दी गई है, पंजाब पुलिस लगी हुई है। पंजाब भवन जो पंजाब का है उसको पंजाब में से पुलिस की सारी सुरक्षा दी गई है। पंजाब के नेताओं, अनेका नेताओं और ऑफिसर के परिवारों को दिल्ली में पंजाब पुलिस की सुरक्षा दी गई है। तो क्या पंजाब के किसानों की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस नहीं लगाई जा सकती? ये जो बोल रहे हैं कि ये तथ्य नहीं बनता है, ये गलत बनता है, ये होगा ही कभी नहीं, क्योंकि पंजाब सरकार और बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार की मिली भगत है और किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप गुरविंदर जी मेरे साथ बने रही। राजेंद्र जी से मैं जानता हूं क्या आपकी बातों से वो सहमत हैं, क्योंकि आपने कई सारे बातों का जिक्र, 4-5 बातों का आपने खास तौर पर मोटे तौर पर जिक्र किया है। बताइए राजेंद्र जी कि आप सहमत हैं? गुरविंदर जी कह रहे हैं कि पहले जो मीटिंग हुई उसका क्या हुआ, इसके साथ ही जो अनाउंसमेंट की गई थी कैप्टन अमरिंदर की ओर से उनका क्या हुआ, इसके साथ ही ये कानून पंजाब में लागू ना हो इसको लेकर जो प्रस्ताव था वो भी अपने पास रख लिया, कई सारी बातों को उन्होंने उठाया। क्या आप सहमति इस पर जताते हैं पंजाब की सरकार के लिए? बताइए सर। पराग जी, जो इशू मेरे भाई ढिल्लों ने उठाए हैं इन पर हमें बहुत बार डिबेट होती रही है। पहले सर्वदलीय मीटिंग, पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें से क्या निकला, क्या चीफ सेक्रेटरी के पास पड़ा रहा, के पास नहीं किया, गवर्नर को मिले हैं, प्रेसिडेंट के पास जाना ही क्या था जब चीफ सेक्रेटरी के पास पड़ा रहा, और फिर उसके बाद गवर्नर के पास, गवर्नर ने आगे नहीं भेजा। इस पे बहुत होती रही। आज एक कि हम पंजाब इकट्ठा ये बात सेशन करने को आज एक दूसरे पे रोक लगाने की बात नहीं है। लोग, देश के लोग नहीं चाहते कि पंजाब जो सभी विपक्षी दल है, किसानों की जहां मुद्दे पे सर्वदलीय बात मीटिंग हो रही है उसमें अलग अलग चेहरा नजर आए, हमारी नजर ना आए, अपनी बात
स्ट्रॉन्गली कहें भारत बात, लेकिन रेजोल्यूशन है उसमें हमें इकट्ठा होना चाहिए था। बात क्या प्राइम मिनिस्टर से वक्त किया जाए, नहीं देता, बात नेक्स्ट मीटिंग में की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती। जहां तक है पुलिस की बात, कहते हैं कि आप पुलिस दिल्ली थानों के सिक्योरिटी के लगा, ठीक है, आप स्टेशन किया, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैं पूछ रहा था, सर अब पिछले दिनों में न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था जी, 72 आवर्स ज्यादा हमारी पुलिस ऐसे रह तक इंडिविजुअल को नोट कर बिट्टा को हमारी हमारी पुलिस लगी हुई है, वो एक बात है, लेकिन किसानों को हम अपनी सिक्योरिटी दे सकते तो देनी चाहिए। लेकिन एक तरफ चीफ मिनिस्टर अपना बता रहे कानून के मुताबिक किसी भी एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट में 72 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकती जी। तो एक कानूनी हो सकता है कि उसमें क्या गलत है, लेकिन जहां तक ये कहते हैं कि जो पंजाब में पास हुआ वो गलत था, हम तो पहले भी कह रहे थे नहीं निकलने वाला था, और हम क्वेश्चन भी दिया था पंजाब असेंबली को, पंजाब सरकार को, सारी एपीएमसी सारे पंजाब को मंडी डिक्लेयर करना चाहिए था। जो दूसरी मंडियां पंजाब में आ ही ना सकती। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर ढिल्लों, पंजाब तो हमने सबसे किया जो भी हो सकता था, कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने बेस्ट किया, उसमें चाल चली, उसमें बीजेपी का साथ दे रहे हैं, वो तो रोक कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पे लगते रहे, क्योंकि उनका परिवार इसमें फंसा हुआ है, अमित शाह से मिलने जाते हैं, हम पहले कहते रहे हैं, तो बात करने वाली नहीं है। पर लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने क्या इन दोनों कानूनों में एक को मानता नहीं दी, उनको रिकमेंड नहीं किया, नहीं की? आप तो खून काले खून है, आप भी तो रख सकते थे वहां, करो रद्द, चाहे उन्होंने कर दिया है, सेंटर ने आज तो स्टे हो गया, आप कुछ चाहे झूठा जो भी है वहां उनको रद्द करते, आप वक्त भी नहीं लगाया, एक कानून को नोटिफिकेशन भी कर दी, और बाद पता चला कि अब किसान पंजाब लोग, देश के लोग आप के केजरीवाल के जो झूठे मगरमच्छ के आंसू है पता चल रहा है, फिर जाके वहां चार के जो फाड़ रहे हो आप, उसको कानूनों की कापी कहने को कापियां फाड़ रहे हो, तो कोई मकसद नहीं निकलता। ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, आज किसानों के साथ दिखाने की जरूरत है कि पंजाब सारा इकट्ठा खड़ा है। आप शोहरत, सस्ती शोहरत लेने के लिए कर रहे हो कि अलग से बने कि आम आदमी पार्टी ने इन मुद्दों पे वॉकआउट कर दिया, क्या नहीं प्राइम मिनिस्टर टाइम देंगे तो बिल नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, जवाब इसका ले लेते हैं गुरविंदर जी से। गुरविंदर जी जवाब दीजिए सर, क्या चुनाव नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर राजेंद्र जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब तक विपक्षी एकता नहीं दिखेगी तब तक शायद केंद्र सरकार से जिस तरीके से विरोध किसानों का हो रहा है उसको लेकर एकता दिखाना जरूरी है। और साफ तौर पर गुरविंदर जी यहाँ पर राजेंद्र जी कह रहे हैं कि जो काम गलत कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में किया उसका विरोध हम भी करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एकता दिखाना जरूरी है। पराग जी, गुरविंदर जी आपकी आवाज आ रही है सर? पराग जी आपकी वॉल्यूम बंद हो गई थी, अब आ गई है जी। मेरी आवाज आ रही है आपके जी? जी आपकी आवाज आ रही है सर। आपने सवाल सुना मेरा? हाँ, मेरी प्लीज मुझे जरा बाद में आधे से ज्यादा रह गया है, दोबारा कर देंगे। जी 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 गुरविंदर जी, देखिए राजेंद्र जी कह रहे हैं कि जहां पर विरोध करना है, विरोध हम भी पंजाब सरकार का करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये जो वक्त है ये एकता दिखाने का वक्त है, क्योंकि अगर विपक्ष एक नहीं होगा तो शायद विरोध अच्छे तरीके से ना कर पाए केंद्र सरकार का, ये वो कह रहे हैं। क्योंकि इसका जिक्र अभी कुछ देर पहले आप भी कह रहे थे, और राजेंद्र जी की ओर से साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि सिर्फ कुछ मुद्दों को लेकर यह दिखाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ना करे कि इन मुद्दों पर हमने बॉयकॉट कर दिया था, चुनाव में वो मुद्दे बुलाने के लिए आम आदमी पार्टी क्या ऐसा कर रही है, यह भी एक सवाल है। पराग जी, इस बात को दीपा जी भूल गए, राजेंद्र जी, जो बातें। आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए सर। हाँ, जो बातें दीपा जी बोल रहे हैं राजेंद्र जी, वो इस बात को भूल गए हैं कि आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसा नहीं विधानसभा में पास किया, ये सभी लोग जानते हैं। झूठ मत बोलिए चैनलों पर, ये बात स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि वो जो पेश किया था वो सभी आप लोगों ने फैलाया हुआ भ्रम था, जो बिल्कुल राजेंद्र जी एक बार सुन लीजिए सर, आ रहा हूं मैं आपके पास। दीजिए, आपको मौका मिलेगा, आप फिर बोलना पूरी अच्छी तरह। जो आप हमारी बात कर रहे हैं कि किसानों के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, जितना काम आम
आदमी पार्टी ने और उनके नेताओं ने दिल्ली में किसानों के लिए कर रहे हैं और अभी भी करने में जुटे हुए हैं। पहले दिन से आम आदमी पार्टी किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेगी। जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन में बिना झंडे, बिना डंडे, बिना किसी निशान के, बिना किसी अपने नारे के, किसानों के नारे के नीचे, किसानों के झंडे के नीचे उस आंदोलन में पूरी सेवा का काम करेगी। हमारे पूरे लीडर लगे हुए हैं। और रही बात आपकी पार्टी की अकाली दल की, 13 सितंबर तक आपके अकाली दल का पूरा परिवार बड़े बादल साहब के समेत आप टीवी चैनलों पर और सभी जगह पर यही गोलियां गाते रहे कि ये जो कानून है, ये ऑर्डिनेंस है, ये किसानों के हक में है, ये किसानों के फायदे में है। लेकिन 13 सितंबर को जब आपको पता चला कि किसानों ने डंडा उठा लिया है कि हमारे साथ वो ही आए, हमारे गांव में वो बनेगा जो हमारे साथ खड़ेगा, तब आपको यहाँ से किसानों के साथ चलना पड़ा। इस बात को मत भूलिए। और जो आप कर रहे हैं अंदर खाते, उसका रिजल्ट आपको आज मिला है। जलालाबाद में सुखबीर बादल की गाड़ियों पर अटैक हुआ, क्यों किया किसानों ने? फतेहगढ़ साहब में किसानों ने अटैक किया सुखबीर बादल की गाड़ियों में। अरे पंजाब में ही अकाली दल के प्रधान के ऊपर अटैक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसीलिए क्योंकि आप अंदर खाते सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलीभगत कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर आप किसानों के विरोध साजिशें रच रहे हैं और वो साजिशें जो है वो आपकी पर्दाफाश हो रही है, लोगों के सामने आ रही है। यही कारण है कि पूरे पंजाब में आपका विरोध किया जा रहा है। आप आम आदमी पार्टी के लिए एक भी शब्द कहने के योग्य नहीं है, क्योंकि आपको लोगों ने नकार दिया है। आपके प्रधान के ऊपर रोज अटैक हो रहे हैं। आप इस बात पर गुरविंदर जी, आपने जो सवाल उठाए हैं श्रोमणी अकाली दल पर, उनको लेकर मैं जाऊंगा और जवाब भी लूंगा राजेंद्र जी से। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने शुरुआत में कहा कि आप विपक्षी एकता के साथ हैं, लेकिन क्या विपक्षी एकता के साथ होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और चुनाव भी नजदीक है, ये माना जाए? नहीं पराग जी, ऐसी बिल्कुल नहीं है बात, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ड्रामेबाजी कर रही है। और ये अकाली दल वाले जब दूसरी पार्टियां जो हैं, जो लिप वाले नेता बोल रहे हैं, जो और बोल रहे हैं, वो सभी इनसे मिली भुगत है उनकी। अंदर खाते सभी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चल रहे हैं। इसीलिए हम विपक्षी एकता के खिलाफ नहीं है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, हम विपक्षी एकता, विपक्षी एकजुटता के साथ है। लेकिन कुछ करे भी तो सही। मुख्यमंत्री ने आज तक 26 जनवरी के बाद एक बार भी दिल्ली के किसी सेंटर के लीडर के साथ मुलाकात की कि केंद्र में जो हो रहा है किसानों के खिलाफ उसको रोका जाए, यह जुल्म क्यों हो रहा है, ये इतने एफआईआर क्यों दर्ज की जा रही है। लेकिन किसान मुख्यमंत्री जी ने एक भी जगह इनकी बात नहीं की है। और ना इनके किसी अकाली दल के नेता ने कहा है कि किसानों पर जो एफआईआर दर्ज हो रही है उसकी निंदा भी नहीं की इन्होंने, जबकि हमारी पार्टी ने पूरा निंदा की है, निंदा प्रस्ताव पास किया हमारी पार्टी ने। और आज भी हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, जवाब अब राजेंद्र जी से भी ले लेते हैं सर। ठीक है राजेंद्र जी, आप जवाब देना चाह रहे थे गुरविंदर जी की बात का, आप जवाब दीजिए। और साथ ही क्योंकि उन्होंने जो मुद्दा उठाया जलालाबाद में जो सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला हुआ, श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से भिड़ंत हुई, फायरिंग तक की वहां पर नौबत आई थी, तस्वीरें में सुबह देख रहा था, उस पर भी आप बोलिए। तो जो आज हमला हुआ है जलालाबाद में, वो तो चलो आप सबके सामने जो गुंडागर्दी इन इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी कर रही है वो एक अलग मुद्दा है, उसको भी निपटा जाएगा। और वहाँ पूरा एसडीएम के ऑफिस का घेराव है, अभी तक का पूरे श्रोमणी अकाली दल के वर्करों ने घेराव किया हुआ है पूरे एसडीएम के ऑफिस का। और जो कांग्रेस वाले गुंडे हैं कहीं शहर में नजर नहीं आ रहे। तो ऐसी बात है, कोई भी एक पत्थर कहीं दूर से मार देगा, उससे ये नहीं होता कि उसके लीडर की वो कोई बात नहीं है। बाकी मैं मिस्टर ढिल्लों को पूछना चाहता हूँ, खनौरी बॉर्डर पे पंजाब का कौन सा एमपी किसको किसानों ने भगाया था, जरा बताएं। भगवंत मान, जिसका खनौरी अपनी पार्लियामेंट हल्का है, जब किसानों के साथ ये बीच गया था, ऐसा भगाया कि पीछे मुड़ के नहीं देखा भगवंत मान ने, इन्हीं किसानों ने। दूसरी बात गुरविंदर जी आ रहा हूं सर। पहले गाजीपुर में जो सुखबीर बादल राकेश टिकैत का सम्मान करने गए हैं, क्या जो प्यार किसानों ने दिखाया इस लीडर को दिखाया है? ये बात छोड़ो, इसमें अभी ना पढ़ना, हमें पढ़ना नहीं चाहिए कौन सी पार्टी क्या है। हमारे जो हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया है, कोई बर्बाद नहीं कर रहे। आपके किसी सरपंच पंच तो आपका पंजाब में कोई है नहीं, किसी एक ने अपने पद से भी इस्तीफा दिया हो, सेंटर की मिनिस्ट्री दिया, जब तक लगा कि यस
सेंटर सरकार पीछे वापस आ जाए। जैसे उन्होंने भरोसा दिया था कि हम जो भी आप कहेंगे किसानों से बात करो, हम उनकी बात को मानेंगे। इनकॉर्पोरेट गुरविंदर जी कुछ कह रहे हैं, बदलाव लाए। जब लगा कि यस ये इसको डिले नहीं कर रहे, इसको आगे नहीं डाल रहे, नहीं दे रहे, ये ऑर्डिनेंस किसानों के हक में है। ये भी दम चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है दम नहीं चाहिए। आपकी पार्टी के नेता अभी तक बोल रहे हैं कि ये प्रस्ताव को किसान समझ नहीं पा रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल अभी तक बोलती रही है कि मैंने किसानों के दबाव में इस्तीफा दिया है, लेकिन ये जो कानूनों की बात नहीं, जो एमएसपी की बात थी, एमएसपी की बात थी, एमएसपी सेंटर से किया, उन्होंने विश्वास दिलाया कि एमएसपी रहेगी, फिर उन्होंने लेटर दी, उसके बारे में बात करते हैं। कानूनों के हक में कभी हमने बात नहीं की है। और जब भी आप जब हरसिमरत और बादल की नीति उन्होंने कमेटी के लिए इन तीनों कानूनों के बारे में भेजा था, आज भी वो लेटर। ठीक है राजेंद्र जी, गुरविंदर जी कह रहे हैं सर, जवाब देना चाह रहे हैं, एक बार सुन ले उनको भी। गुरविंदर जी बोलिए सर। पराग जी, ये दीपा जी से पूछो, राजेंद्र जी से पूछो कि पहले इस ऑर्डिनेंस के लिए केंद्रीय खेती मंत्री को चंडीगढ़ में लाए और चंडीगढ़ में लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवाते रहे कि ये किसानों के हक में है, किसानों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो शुक्र है भगवान का कि किसान समझ गए कि ये उनके लिए मौत का वक्त है, तभी इन लोगों को बात करनी पड़ी। अरे दीपा जी, आप कहाँ बोल सकते हैं? आपकी पार्टी के लिए बोलने के लिए है ही क्या है? आपने किसानों को बिल्कुल डुबो कर रख दिया। ये जो वारंट डेथ का जारी हुआ केंद्र की पास से, सरकार की तरफ से, इसके लिए आप पूरी तरह जिम्मेवार हैं। केंद्र के जहाँ जिम्मेवारी है वहाँ अकाली दल की जिम्मेवारी है, वहीं पे कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है, क्योंकि हाई पावर कमेटी के मेंबर थे पंजाब के मुख्यमंत्री, और उस समय भी आपने कोई आवाज नहीं उठाई और किसी ने बताने की कोशिश नहीं की कि ऐसी अंदर से खिचड़ी पक रही है। आपकी मिली भगत, आपको पता था कि हाई पावर कमेटी में आप सरकार में थे, हाई पावर कमेटी में क्या चल रहा आपको पता था, लेकिन पता होते हुए भी आज। ठीक है राजेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं सर। गुरविंदर जी, राजेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। राजेंद्र जी मेरा सवाल एड ऑन हो रहा है। राजेंद्र जी मेरा सवाल एड ऑन ये है कि क्या सिर्फ सभी पार्टियों को अपनी अपनी जमीन नजर आ रही है चुनाव नजदीक आते ही, ऐसा ही है, ये माना जाए? क्या कह रहे हैं, रिपीट करना सर। क्या अपनी अपनी जमीन नजर आ रही है सभी पार्टियों को जो विपक्ष में है, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो? देखो प्रयाग जी, पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीति सबने करनी है, आने वाला इलेक्शन भी लड़ना है, अपनी जमीन पे स्ट्रांगली खड़े भी होना है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कह सकते। पर लेकिन जहां तक किसानों की बात है उसमें राजनीति नहीं है। राजनीति को पीछे छोड़ के श्रोमणी अकाली दल किसानों की पार्टी है, किसानों के साथ खड़ा है। मैं मिस्टर ढिल्लों से पूछ रहा हूँ, दिल्ली जल बोर्ड तो आपके अंडर आता है, केजरीवाल सरकार ने पिछले 4 दिन में पानी वहां से बंद किया हुआ है, कहाँ चले गए टैंकर? क्या आपको भी अमित शाह ने बोल दिया कि यहाँ पानी नहीं पहुंचाना? मिस्टर राजेवाल ने 3 दिन पहले बयान दिया है कि पहले कुछ ना कुछ टैंकर आ रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के, अब वो भी केजरीवाल की सरकार भी सेंटर के पीछे लग गई है, अब पानी भी वहां के किसानों का बंद कर दिया है। यहाँ तो आप बात करते हो कि यहाँ तो पुलिस वहां पहुंचे, जो पानी पहुंच सकता है, जो कि सुबह शाम चाहिए होता है, वो भी आपको किसानों का बंद कर दिया। एक दिन के लिए केंद्र सरकार की पुलिस ने हमारे टैंकर रोके थे जल बोर्ड के, लेकिन सारी टॉयलेट नो वहां के लीडरों ने बोला है, आज जाके वहां पे देखे, पुलिस का नाम ले रहे हो। आपका लीडर कोई, अरे आपका लीडर कोई वहां जाने नहीं देता, कोई भी आप देखेंगे कहां से? आपके लीडर जो है टिकैत जी के पास यूपी के बॉर्डर पर तो जाते हैं, अरे पंजाब के किसानों में भी जाकर देखो, हौसला है तो उनके पास भी जाओ। टिकैत साहब के पास तो चले गए सुखबीर सिंह बादल, लेकिन हाथ जोड़कर पंजाब के किसानों के पास क्यों नहीं गए? पंजाब के किसानों के साथ हमदर्दी क्यों नहीं जताने जाता तुम्हारा कोई लीडर? क्योंकि पता है कि तुमने क्या किया पंजाब के किसानों के साथ, क्या धोखाधड़ी की है। मिस्टर ढिल्लों, आज पंजाब में हमारे नौजवान लापता है, उसका सबसे ज्यादा काम कौन कर, हमारा फर्ज भी बनता है, कौन कर रहा है? दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली श्रोमणी अकाली दल, क्या वहां लाइनें अपनी खोल के, कॉल सेंटर खोल के, क्या वो काम नहीं कर रही? जहां भी यूपी के बॉर्डर पे, उत्तराखंड के बॉर्डर पे, जहां जहां भी पुलिस ने वहां अत्याचार किया, क्या हमारे श्रोमणी अकाली दल के लीडर स्पेशली अपना मिस्टर सरसा, मनजिंदर सिंह सरसा साथियों के साथ वहां नहीं गए? इतना भी वहां लंगर चल रहा है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली श्रोमणी कमेटी के और एसजीपीसी से लंगर की वो नहीं कर, सेवा नहीं हो रही? ये की बातें नहीं है। देखो हम इन बातों में बात नहीं करते हैं,
बिल्कुल पीछे रह के एक जो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा जो फर्ज बनता है, हम वो कर रहे हैं। हम केजरीवाल ठीक है गुरविंदर जी, ठीक है गुरविंदर जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को शुरुआत से हम देखते आए हैं सभी से अलग होने का दावा आम आदमी पार्टी की ओर से किया जाता है और अपने स्टैंड पर हर एक राज्य में, अभी उत्तराखंड में भी चाहे बात करें, उत्तर प्रदेश में हम बात करें, तो वहां पर भी आप खुद को अलग पार्टी बताकर जा रहे हैं और अलग जो मुद्दे हैं उन पर जमीनी स्तर पर काम होगा, इस बात को पार्टी कह रही है। तो क्या ये माना जाए कि पंजाब में भी अपना एक अलग स्टैंड आम आदमी पार्टी का है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इसी स्टैंड पर पार्टी बनी रही तो क्या केंद्र सरकार से मुकाबला अकेले रहकर कर पाएगी? राज जी, बात इस बात की नहीं है, बात हम भी एक राजनीतिक पार्टी है, हम एक राजनीतिक पार्टी है और हमारी पार्टी का पहले से ही यही निशाना रहा है कि हम राजनीति बदलने आए हैं, राजनीति बदलेंगे और बदल कर चलेंगे। हम ये झूठ तूफान तोड़ने वाली पार्टियों के साथ कभी भी मिलकर नहीं चलेंगे, लेकिन किसानों के मुद्दे के लिए हम विपक्षी एकता के साथ इनके साथ अगर ये किसानों के लिए कोई सीधा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, कोई ये ज्यादा गड़बड़ नहीं करते हैं, कहीं भी अंदर खाते जैसे खिचड़ी पकाते हैं, उसमें नहीं हमारा कोई दखलंदाजी होगी। लेकिन अगर ये सीधे होकर सीधी तरह बात तो करनी है प्रधानमंत्री से और ये जाके कांग्रेस पार्टी के साथ मिली भगत करके मिलते हैं, राष्ट्रपति को मिलने का टाइम मांगते हैं। अरे राष्ट्रपति ने करना ही क्या है पराग जी? लेकिन गुरविंदर जी, जब सभी लोग जो अलग अलग पार्टी के नेता जब एक होकर बात करेंगे तभी तो फिर केंद्र सरकार से बात भी कर पाएंगे एकजुट होकर। अगर सब अलग अलग रहेंगे तो कैसे बातचीत होगी फिर? मुख्यमंत्री ने कभी बात की है? जो पंजाब के मुखिया हैं वो बात तो सर, ये तो वो मौका दे रहे हैं ना कि आप आइए और सभी पार्टियां मिलिए और एक साथ हम एकजुट होकर बात करते हैं केंद्र सरकार से, लेकिन उस मौके को भुना नहीं रहे ना आप फिर? मौका नहीं हम बुलाने वाले, हम किसानों के साथ दिल से खड़े हैं, हम किसानों के साथ सच्चाई से खड़े हैं। हम फिर दोबारा ये बात दोहराते हैं कि हम किसानों के समर्थक हैं, हम सच्चाई से चाहते हैं। सर देखिए, किसानों के समर्थन में तो सारी विपक्षी पार्टियां खड़ी हुई हैं। अब सवाल यही है ना, घूम फिर कर वही सवाल है कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में हैं, केंद्र सरकार के विरोध में हैं, तो क्यों नहीं उस पहल का आप सम्मान कर रहे हैं, क्यों नहीं उस पहल को अपना रहे हैं जो कैप्टन अमरिंदर कर रहे हैं सभी को एकजुट करने के लिए? एकजुट करके बाद में कुछ करते नहीं और ये उनको पूछते भी नहीं है। ये कभी इन्होंने पूछा उनको अकाली दल वालों ने, ये कभी लिप वाले 2 मेंबर हैं, इन्होंने कभी पूछा कि हाँ क्या किया कैप्टन साहब आपने, क्या उसका जवाब मिला? हमने पूछा, हमें जवाब नहीं देते, बोले कोई नहीं, करेंगे हम मिलेंगे सेंट्रल सरकार को। लेकिन बोलने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने पिछली मीटिंग में जो सर्वदलीय मीटिंग हुई थी उसमें ये हुआ था कि पूरा जो है विपक्षी दल इकट्ठे होकर मिलने गए। कोई टाइम मांगा? बिल्कुल नहीं मांगा। टाइम तो मांगना है क्योंकि ये अमेंडमेंट या इसमें जो भी बदलाव होना है या कानून रद्द करने हैं वो तो देखो प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने करने हैं, लेकिन ये लोग मुख्यमंत्री और ये अकाली दल वाले टाइम मांग रहे हैं राष्ट्रपति से। ठीक है, राजेंद्र जी जवाब दीजिए सर। आप एक तरफ तो विपक्षी एकता का दावा, किसानों के समर्थन का दावा करते हैं और दूसरी तरफ जो सवाल पंजाब सरकार से पूछने चाहिए आप नहीं पूछते हैं। बिल्कुल पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं, कोई भी डिबेट निकाले हम अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज वो वक्त नहीं डिबेट में रखते हैं लेकिन किसी लीडर ने नहीं पूछा। टोटल एक मिनट मिस्टर ढिल्लों, मेरी बात, जो भी अंदर बात है सजेशन भी दी है, अपनी बात भी रखी है, लेकिन ये कि नहीं इनकी सस्ती शोहरत के लिए जस्ट अपनी जो जमीन इनकी खिसक गई है, पॉलिटिकल जमीन पंजाब से खत्म हो चुकी है, उसको दोबारा हासिल करने के लिए वॉकआउट करना हम बेहतर नहीं समझते। यही पार्टी सामने है जो पिछली पार्लियामेंट में जो 2014 का पार्लियामेंट था, 2017 का असेंबली था, उसमें ठीक है 25-26% वोट पड़ी थी आम आदमी पार्टी को, जो आज इस पार्लियामेंट में 7% रह गई है। और उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं एक में भी इनकी जमानत भी नहीं जबी बची है, सब में इनकी जमानत गलत हुई है। और जितनी इनके पिछले सरपंच के इलेक्शन हुए हैं और हुए हैं या आने वाला जो 14 तारीख को इलेक्शन हो रहा है म्युनिसिपैलिटी का, कॉर्पोरेशन का, उसमें हाल देख लेना, इनको अपने कैंडिडेट नहीं मिल रहे। उस जमीन को, पॉलिटिकल जमीन को ढूंढने के लिए कुछ हमारी बन जाए, ऐसे ड्रामे कर रहे हैं हम, उसमें बनने वाला कुछ नहीं। पहले 5 साल पहले, 6 साल पहले लोगों में चाहते हैं कि सिस्टम बदलना चाहिए, ये पार्टी आई है सिस्टम बदलेगी, नई सोच के साथ आएगी, लेकिन पिछले 6 सालों में देख लिया कोई नई सोच नहीं है, कुर्सी की लड़ाई है। भगवंत सिंह मान किसी को पार्टी में रहने नहीं देंगे, अपने अलावा सबको पार्टी से निकाल रहे हैं। 20 इनके एमएलए लोगों ने जिताए थे, आज 9 एमएलए भी इनके रह गए हैं। और
सच्चाई ये है। अब ये ठीक है, ड्रामा कर रहे हैं, अपनी जमीन तलाश राजनीतिक जमीन, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं गुरविंदर जी। गुरविंदर जी बोलिए सर। पराग जी, ये मुझे दीपा जी के हालात पर तरस आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की जमीन खिसक गई है। दीपा जी याद हंस रहे हैं सर आपकी बात पर राजेंद्र जी। परसेंटेज के साथ गुरविंदर जी आपकी बात पर हंसी आ रही है दीपा जी को। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे बात करने दीजिए ना। हाँ, आपके के साथ गलत है तो आपके 63 एमएलए थे, 13 रह गए। पता है आपको? आ गई है। कोई भी आप असेंबली का इलेक्शन जो हुआ है उसमें आपकी जमानतें जब हुई है कि नहीं हुई? मेरी बात अच्छा एक बार सुन लेते हैं दीपा जी। राजेंद्र, दीपा जी एक बार सुन लीजिए सर, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। गुरविंदर जी को एक बार सुन लेते हैं। गुरविंदर जी बोलिए। पराग जी मेरी बात पूरी कर रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल करिए सर। कि हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहे। मेरा हल्का फतेहगढ़ साहब है पंजाब में दीपा जी, और फतेहगढ़ साहब में 23 सीटें हैं मेरी। आज म्युनिसिपल कमेटी की मैं छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ। 23 के 23 कैंडिडेट में से 20 के कागज भर दिए, 3 के कल के भर रहे हैं, और आपके पास कैंडिडेट 3 है सिर्फ 50,000 फतेहगढ़ साहब में। जब जिले में पकड़ आपको कैंडिडेट भी नहीं मिले, हमारी बात कर रहे हो। पूरे पंजाब में हमारे कंप्लीट पूरे म्युनिसिपल नगर कौंसिल नगर जो निगम चुनाव लड़ रहे हैं और अपने चुनाव निशान पे लड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? 2022 में पता चल जाएगा जब आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। दिल्ली में जैसे कांग्रेस साफ हुई है, पंजाब में आम आदमी पार्टी आपका और कांग्रेस दोनों का सफाया कर देगी। सर ये तो एकता नहीं हुई ना गुरविंदर जी, एकता कहाँ है फिर? एकता तो हम एकता किसान मुद्दे पर एकता है हमारी। पिछली बार भी आप कह रहे थे कि भी आम आदमी चलिए पार्टी ये कम से कम देखिए दीपा जी, अच्छी बात है। किसानों के मुद्दे पर गुरविंदर जी कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन अपने राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं। जाहिर तौर पर चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां मुद्दे उठाती हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर वो साथ हैं। क्या ये साथ मंजूर है श्रोमणी अकाली दल को भी, और क्या इस बात को स्वीकार कर रही है आपकी पार्टी कि हाँ आम आदमी पार्टी साथ है? आप मान रहे हैं, विश्वास में हैं दीपा जी? नहीं, ये शौक में आज इनको साथ रहना चाहिए था। बिल्कुल अपनी बात इन्होंने रखी थी। बिल्कुल 15 दिन में 10 दिन में वक्त स्नान में था, दोबारा बात करनी चाहिए थी, फिर धरने की भी बात करनी चाहिए थी। इनको पार्टी में रुक के सारी बात अंदर करनी चाहिए थी। इनको वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। वॉकआउट करने से जो एक मैसेज गया है बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन ये एक ही पार्टी थी जो वॉकआउट करके गई है। बेहतर होता ये पार्टी में रह के एकजुट होके जो भी रेजोल्यूशन था उसमें थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती तो कर लेते। बड़ा पूरी हम झूठ का साथ नहीं दे सकते, हम झूठ के साथ नहीं आएंगे। लास्ट में एक छोटी सी न्यूज बनाने के लिए इन्होंने वॉकआउट किया है, सिर्फ इनका पॉलिटिकल था। गुरविंदर जी क्या पॉलिटिकल था ये? क्योंकि आप देखिए आप भी ये दो बातें कह रहे हैं कि हम किसानों के मुद्दे पर साथ हैं, लेकिन हमारे अलग मुद्दे हैं, उनको आप करते रहिए। जाहिर तौर पर आप करेंगे भी क्योंकि आप अलग से एक पार्टी हैं, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल था? और अगर कोई बात थी, अगर आप कोई संशोधन आपका था या आप कोई अपनी बात रखना चाह रहे थे कि नहीं ऐसे करना चाहिए, तो क्या बैठक में उन बातों को नहीं रखना चाहिए था? बॉयकॉट से बेहतर होता? पराग जी उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। जब सुनी नहीं तो हमें वॉकआउट करना ही ठीक नहीं था। यार सुनी नहीं, चाय पी के आए हो कि नहीं, वहाँ काजू बादाम खा के आए हो कि नहीं? सुनी क्यों नहीं है? अपने सुनी आपकी बात। आप जस्ट एक न्यूज बनाना चाहते थे कि हमने वॉकआउट किया, बिल्कुल गलत ना बोलो। दीपा जी लोग अंदर से बताया है। दीपा जी आप जो सस्ती शोहरत लेने के लिए सोच रहे हैं कि मीटिंग में आप अटेंड करके आप हमें इस मीटिंग का रिजल्ट बता दीजिए क्या निकलेगा। हम अभी बता रहे थे। अच्छा ठीक है, चलिए राजेंद्र जी बताइए सर रिजल्ट क्या रहा, नतीजा क्या? क्योंकि अब समय भी कम है, आखिरी कमेंट आप इससे हो जाए। सब नतीजा क्या रहा इस बैठक का बताइए। गुरविंदर जी का भी सवाल है, दोबारा सवाल करें। राजेंद्र जी, गुरविंदर जी पूछ रहे हैं नतीजा इस बैठक का क्या हुआ आप बताइए। वो तो शामिल हुए नहीं, आपकी पार्टी तो शामिल थी, क्या कुछ हुआ बताइए सर। मैसेज जाता है सारे देश में, पंजाब में, कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जहां किसानों का मुद्दा है, जो बीजेपी की गुंडागर्दी है, सर बैठक में क्या हुआ? बीजेपी की सरकार बताएंगे जो हैंकड़बाजी है उसके खिलाफ है। ये मैसेज तो जाता कि सारा पंजाब किसानों के साथ है, सारा पंजाब इन 3 कानूनों के खिलाफ है। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आप समय मुझे इतनी इजाजत देता है, इसलिए मैं आप दोनों से अब इजाजत चाहूंगा। गुरविंदर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने दोनों पार्टियों को सुना, आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की ओर से अपने अपने पक्ष अपनी अपनी बातें रखी गई। हालांकि विपक्ष की जो बैठक हुई उस बैठक में आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया, क्योंकि पंजाब सरकार से कुछ मुद्दे आम आदमी पार्टी के हैं जिनको पार्टी अब उठा रही है
और जाहिर तौर पर एक कहा जा रहा है कि जब पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को बात करनी चाहिए थी केंद्र सरकार से, किसानों के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात को रखना चाहिए था, तब तो उन्होंने नहीं किया और अब सिर्फ ये बैठक करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। फिलहाल अभी देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे आंदोलन को लेकर आगे प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी या फिर किस तरीके से दृश्य देखने को मिलेंगे। बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, विपक्षी पार्टियां एक होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपस में भी जो मुद्दे एक दूसरे के साथ टकराते हैं उनमें कहीं ना कहीं मतभेद जरूर नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए पंजाब डिबेट से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। सत सुरां दे नाल सजाइए गीतां दा संसार, आओ सारे करिए मस्ती बैठ सारा परिवार। गीतां दे मतवाले आगे खिच तैयारी घरी घरी, हो आ रही है जी पंजाबी। जी पंजाबी अंताक्षरी 23 जनवरी तो हर शनिवार ते ऐतवार शामी 7 बजे सिर्फ जी पंजाबी ते। एक 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस 5,000 तक का भी है और 10,000 तक का भी। PolicyBazaar.com पे 20 से ज्यादा कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करके पैसे बचाओ।